Next question, question number 9. In air, a charged soap bubble of radius capital R breaks into 27 small soap bubbles of equal radii. तो हमारे पास एक big drop है which is breaking into 27 small drops, okay, of radius R. Then the ratio of mechanical force per unit area of big soap bubble to that of small soap bubble is. तो आपको पूछा है what is mechanical force per unit area, ratio of mechanical force per unit area. So the question is very good. First of all, you need to remember what is the mechanical force per unit area. सबसे पहले ये पता होना चाहिए. तो and one more thing that you need to know is हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था by using n times of volume of small drop equal to volume of big drop. तो ये आता है n r क्यूब इंटू कैपिटल R क्यूब. मतलब आपके पास ये सॉल्व करके आता है आपको यू गेट स्मॉल r as capital R upon n raised to 1 by 3. So small r equal to capital R upon 27 raised to 1 by 3, that is R by 3. तो ये आपको मिल जाएगा R by 3. Okay, good. Then this is small r equal to capital R by 3, है ना. तो आपको ये मिल गया. Now you need to know that pressure inside a soap bubble. अगर आपको याद होगा कि हमने प्रेशर के लिए इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे. तो फॉर अ सोप बबल प्रेशर डिफरेंस अगर आपको याद होगा डेल्टा पी, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, दैट वाज इक्वल टू 4t बाय r. क्योंकि ये आपका होता है फॉर सोप बबल 4t बाय r, फॉर ड्रॉप इज 2t बाय r. तो डेल्टा p, ओके, फॉर स्मॉल ड्रॉप is 4t by small r. Good, right? First thing is this. Then for a big drop, delta p big is 4t by capital R, right? And small r is nothing but capital R by 3. तो ये ऊपर जाएगा 3, तो 3 into 4 मतलब 12 आएगा. तो ये 12 आएगा, तो 12t by R आएगा आपका. Okay, so you will get 12t by R. So delta PS is 12t by R and delta PB is 4t by R. So this is what you should know. Now आपको पता है mechanical force. What is force? Force is pressure into area, but force is pressure into area. तो mechanical force is proportional to pressure. Okay, so what you can do is, क्योंकि हमको रेशियो ऑफ मैकेनिकल फोर्स ही पूछा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसका रेशियो ले लेंगे. सो वी विल टेक डेल्टा पी फॉर बिग मतलब लार्ज टू दैट ऑफ डेल्टा पी स्मॉल. ओके, तो ये आएगा हमारे पास 4t by r अपॉन 12t by r. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल हैव 1 by 3. सो रेशियो विल बी 1 by 3. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. हमारे पास एक चार्ज बबल है of radius r which breaks into 27 small bubbles of equal radii. Okay, good. Then ratio of mechanical force acting per unit area. आपको पूछा है what is the mechanical force per unit area on big मतलब large drop to that of small drop. प्रॉब्लम कहाँ आता है कि one thing is this, हमने स्मॉल पे कितना मैकेनिकल फोर्स है वो निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, लेकिन स्मॉल ड्रॉप जो थे वो 27 थे. आई एग्री विद दिस, बट जब आप फोर्स निकालते हो तो प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो ये एरिया में भी वो 27 फैक्टर आने ही वाला है. और जब आप रेशियो लोगे तो वो 27 फैक्टर कैंसल आउट होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है. इफ यू वांट
ऑफ कोर्स इफ यू वांट आप यहाँ पे 27 लिख दो, कोई इशू नहीं है। फिर जब आप 27 वहां लिखोगे तो फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप करोगे, यू विल से दैट फोर्स, क्योंकि फोर्स का रेशियो पूछा है, फोर्स ऑन बिग टू दैट ऑफ स्मॉल will be equal to delta PB into area of big drop upon delta PS upon area of small drop। तो यहाँ पे 27 फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, that is why I did not write it, so it's okay, you can do this way also। तो 1:3 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two capillary tubes of different diameters are dipped in water, the rise of water is, दो capillary tube of different diameters, they are dipped in water, okay, the rise of water is 0 in both the tubes, same in both the tubes, more in the tube with larger, more in the tube with smaller diameter। तो सबसे पहले A और B is basically nonsense, it doesn't make any sense। आपको पता है H क्या था, you need to remember 2T cos theta by R rho G। तो H is inversely proportional to R, मतलब जिसका रेडियस कम होगा उसमें हाइट ज्यादा होगा, तो मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा ये, बिकॉज एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो इट वाज दैट सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, a metal sphere of radius capital R and density rho1 is dropped in a liquid of density sigma, moves with terminal velocity v, another metal sphere of the same radius and density rho2 is dropped in the same liquid, then its terminal velocity will be। So first of all you need to know what is the equation of terminal velocity, 2/9 r square। आपको याद होगा यहाँ पे हमने लिखा था डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा हमने लिखा था, इंटू जी अपॉन ईटा, ऐसा आता है टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब क्या क्या बोला है, मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, डेंसिटी सिग्मा 1 मतलब रो 1 बेसिकली, ओके। हाँ, तो पहले केस में आएगा v1 इक्वल टू 2/9, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सॉल्व कर सकता हूँ, यू कैन आल्सो डू डायरेक्टली वाया प्रोपोर्शनलिटी, इट्स ओके। तो देखो क्या है, what will be constant, है ना, जो अनदर मेटल स्फीयर है, सेकंड मेटल स्फीयर का रेडियस सेम है तो रेडियस कांस्टेंट जी तो कांस्टेंट ही है, सेम लिक्विड में है तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, ओके। सो द थिंग इज यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन ऑन प्रोपोर्शनलिटीज, वैसे भी चलेगा, राइट। तो यू कैन से दैट v इज प्रोपोर्शनल टू रो s माइनस रो l। तो आपको मिल जाएगा v1 इक्वल टू रो s, पहले केस में रो 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा, सिंपल। दूसरे केस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू रो 2 माइनस सिग्मा, तो आपको मिल जाएगा v2 बाई v1 इक्वल टू रो 2 माइनस सिग्मा अपॉन रो 1 माइनस सिग्मा, ओके। देयरफॉर v2 विल बी इक्वल टू v1 रो 2 माइनस सिग्मा अपॉन रो 1 माइनस सिग्मा, ओके। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो दिस इज वेरी सिंपल, तो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct? Surface energy is potential energy per unit length, surface energy is work done per unit area, surface tension is work done per unit area, surface tension is work done per unit length, surface energy is work done per unit force। तो which one is the correct statement? तो surface tension is work done per unit area is correct। क्यों?
क्योंकि आपको पता है सरफेस एनर्जी का जब हम इक्वेशन निकालते थे तो क्या आता था, dw वर्क डन इक्वल टू tda। आपको याद होगा हमने एक मेटालिक फ्रेम लिया था, उसमें एक साइड मूवेबल था, राइट। उस एक साइड जो मूवेबल था उस केस में, इन दिस केस पर्टिकुलर केस, जो वर्क डन हुआ था टू इंक्रीज द सरफेस एरिया वाज TdA एंड दिस वर्क डन वाज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी। तो टेंशन क्या आ गया फिर, dw/dA। तो टेंशन, सरफेस टेंशन इज वर्क डन पर यूनिट एरिया, ऑप्शन नंबर बी। सो सरफेस टेंशन इज वर्क डन पर यूनिट एरिया। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, extremely simple questions we have. Okay, so next question. Two light balls are suspended as shown in figure. When a stream of air passes through the space between them, the distance between the ball will remain same, may increase or decrease depending on speed of air decrease. तो जब इन दो बॉल्स के बीच में से एयर पास होगा तो डिस्टेंस सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्पीड, या डिक्रीज होगा, ऐसा आपको पूछा है। तो वेल, व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ एयर पासेस थ्रू स्पेस बिटवीन द बॉल्स, द प्रेशर रिड्यूस बिटवीन देम एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, मैं बताता हूँ। The thing is कि ये जो क्वेश्चन है it actually comes from Bernoulli's equation which is not included for this year, तो इसलिए I think you should skip, otherwise you should just know the answer, क्योंकि Bernoulli's equation इस साल के लिए डिलीटेड है, फिर मुझे पूरा Bernoulli's equation बताना पड़ेगा, ईच टर्म उसमें प्रेशर हेड क्या होता है, ग्रेविटी हेड क्या होता है, वो सब बता के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। So I better skip this, but you should know the answer, that is option number D. Next question. The excess of pressure, excess pressure मतलब inside pressure minus outside pressure, due to surface tension on a spherical liquid drop of radius r is proportional to, ये तो 2T/r आता है, पता ही है हमको। So it is proportional to 1/r, मतलब r raised to -1, ऑप्शन नंबर ए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हमने लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन से निकाला हुआ है, सो इट्स सिंपल थिंग। When a large bubble rises from bottom of a water lake to its surface, then its radius doubles. If the atmospheric pressure is equal to the pressure of height h of a certain water column, then the depth of the lake will be. क्वेश्चन अच्छा है ये। What you have is, आपके पास एक लेक है, मान लो ये लेक है, so let's say we have lake. Okay, so here in this lake filled with water, you have a drop, spherical drop, yeah, bubble, not drop but a bubble. Now ये जब बॉटम से सरफेस पे आ रहा है, इसका रेडियस जो है वो डबल हो जाएगा। So something like this, it will become double in the radius. Okay, atmospheric pressure is equal to the pressure of height h of a certain water column, then the depth will be. It's a very good question, provided you know that how to measure pressure, by the way. तो हमको दिया क्या है, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो है r2 और यहाँ पे जो रेडियस है वो है r1। तो r2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ r1 है, राइट। हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ बबल इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो v1/v2 हमको रेशो मिल जाएगा, या फिर v2/v1, जो भी v2/v1 हमको रेशो मिल जाएगा, दैट इज r2/r1 क्यूब,
and R2 by R1 is 2, तो this is 2Q, मतलब V2 by V1 is equal to 8 आया, right? Good. Now from Boyle's law, you know, from Boyle's law what we know is, और यही क्वेश्चन JEE में रिपीट हुआ है एक बार, ओके? सो you know from Boyle's law P1 V1 equal to P2 V2, right? सिंपल है. तो you have P2 या फिर you write P1 equal to V2 by V1 times of P2. तो P1 is V2 by V1 is 8 times of P2. So pressure at the bottom of the lake is 8 times compared to the surface. Okay, this is important. या फिर pressure at the surface is 1 by 8 as compared to the bottom. ऐसा है. Now, how do you find out pressure at the bottom? देखो बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो आएगा एक तो लिक्विड कॉलम की वजह से, मतलब ये जो लिक्विड है यहाँ पे इसकी वजह से, और उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर होगा. तो प्रेशर एट द बॉटम P1 इज एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, मतलब वाटर जो कॉलम होगा उसकी वजह से ये प्रेशर आएगा. तो यू शुड नो दिस. तो अब यू शुड नो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो P2 है ना. वाई P2? क्योंकि ये 2.2 कहां लिया हमने, जस्ट एट द सरफेस. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब P2 है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. और प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम H रो G से निकालते हो आप. तो P1 आपको मिल गया P2 प्लस H रो G. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल थिंग, राइट? बट अगेन, बट P1 क्या आया हमारा, 8 टाइम्स ऑफ P2 आया. तो 8 टाइम्स ऑफ P2 प्लस H रो G ये आपका आ गया, राइट? H, this H is nothing to do with this H, okay? ठीक है, चलो हम देखते हैं बाद में. Anyways, we'll see it later, right? So ये आ गया आपका 7P2 equal to H रो G, okay? Then P2 is atmospheric pressure. प्रेशर मेजर करने के लिए जो हमने एक प्रेशर मीटर लिया था उसमें कॉलम का हाइट कितना है H, तो हम अब लिखेंगे H रो G इक्वल टू स्मॉल h रो G. तो कैंसल और कैंसल, तो हाइट मतलब डेप्थ ऑफ लेक happens to be 7 times of H, 7 times of H. मैं ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज लिटिल कंफ्यूजिंग. तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वेल, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक्स पता होना चाहिए. हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप था जो बॉटम ऑफ द लेक पे है. हम मतलब जब ये लिक्विड बबल, सॉरी नॉट ड्रॉप, when this bubble is going from bottom to top, its radius is increasing. तो twice हो रहा है रेडियस. तो R2 is to R1, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब. V2 by V1 is R2 by R1 क्यूब. तो 2 का क्यूब मतलब V2 by V1 is 8. Okay, V2 by V1 is equal to 8. From Boyle's law, you have P1 V1 equal to P2 V2. So P1 is V2 by V1 into P2. तो P1 आपका आएगा 8 टाइम्स ऑफ P2. ओके, तो P2 आपको मिल गया P1 by 8 बेसिकली. अब बॉटम ऑफ लेक पे जो प्रेशर होगा वो इस लिक्विड कॉलम से आएगा, और प्लस क्योंकि प्रेशर एट अ पॉइंट इज ड्यू टू द लिक्विड, और उसके ऊपर क्या क्या है, लिक्विड है फिर एटमॉस्फेयर है, तो लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेयर से आएगा वो. देन यू हैव P1 इक्वल टू P2 प्लस H रो G. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने 0.2 जो है वो सरफेस पे लिया, सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P1 इक्वल टू P2 प्लस H रो G आया. बट P1 was 8 P2, तो हो गया P2 as they are telling you, है ना, उन्होंने क्या बोला है, if atmospheric pressure मतलब P2, because P2 is atmospheric pressure, is equal to pressure of height H of certain water column.
मतलब मैं जब P2 इक्वल टू एच रो जी लिखूंगा तो कैपिटल H लिखना है यहाँ पे मुझे, और ये जो H रो जी है, दिस इज द हाइट ओवर हियर, दिस इज द डेप्थ ऑफ द लेक, राइट। और ये जो कैपिटल H है, ये एक प्रेशर मीटर में कितना हाइट है, that is capital H. So capital H is the height of liquid column in pressure measuring device. Small h is depth of the lake. इसमें confusion मत करना, it is a simple thing. Okay, next question. A metal wire of density rho floats on water surface horizontally. Okay, if it is not to sink in water, then maximum radius of wire is proportional to. Again a very good question. तो आपको क्या क्या दिया है, आपको बोला है मेटल वायर का डेंसिटी दिया है, राइट। सरफेस टेंशन बोला है T है वाटर का, और G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको पता है कि जब हमारे पास एक L लेंथ का वायर हम जब एक लिक्विड के ऊपर रखते हैं, सो वी हैव लिक्विड, मान लो वी हैव लिक्विड, सम लिक्विड, and this wire is on that liquid। तो हमने ये देखा था कि टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इज टेंशन इनटू लेंथ, राइट। तो T इंटू एल आता है, राइट। ऑल्सो इसका जो मास होगा वायर का, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इज mg, है ना। तो फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू mg, right? But since this wire is floating, wire float हो रहा है, मतलब वायर सिंक नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये बैलेंस्ड है। सो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो टेंशन इनटू एल इक्वल टू mg, ये आ गया आपका। नाउ व्हाट इज मास, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है मैक्सिमम रेडियस। तो रेडियस हम मास से ही ला सकते हैं, क्योंकि मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी क्या बोला है आपको, रो इनटू जी। तो टी एल वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, तो टी इंटू एल, राइट। तो ये आपका आ जाएगा, हमको चाहिए, वी वांट टू हैव बेसिकली, वॉल्यूम हमने गलत लिखा है क्योंकि ये वायर है, और वायर का वॉल्यूम हमारे पास एरिया इनटू लेंथ आएगा, बिकॉज वायर इज सिलेंड्रिकल, सो दैट्स इट। कैंसल कैंसल, लेंथ कैंसल हो गया। T इक्वल टू ए इज पाई आर स्क्वायर रो जी, तो हमको मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन पाई रो जी, मतलब आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन पाई रो जी। तो आपको मिल गया रेडियस which is t under root of t upon pi rho g। Okay, so this is the equation for radius of wire, maximum radius। इससे ज्यादा radius हुआ तो gravity will dominate and the wire will go inside, it will sink, it will not float on the surface, right? So this is how you can solve this particular question। Next question. In a capillary tube having area of cross section A, water rises to a height h. If cross sectional area is reduced to A/9, the rise of water in the capillary tube will be। तो सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने चेंज किया है, वाटर लिक्विड चेंज नहीं किया, मतलब सॉरी, मतलब सरफेस टेंशन सेम होगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम होगा। मतलब बेसिकली क्या है कि हमारे पास पहले एक कैपिलरी ट्यूब था, लेट अस से विद दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए। फिर आपका जो यहाँ पे दूसरा कैपिलरी है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन जो है इट इज
A by 9. This is A and A by 9. Okay, good. Then you have in this case height as h, तो h1 equal to h, और यहाँ पर आपको height पूछा है, how much is the height. Alright, तो now how to solve this? बहुत simple है. हमको पता है for a capillary tube in any case, अगर liquid का height यहाँ पे मान लेते हैं h है और radius है r, तो r into h ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है for a capillary tube. Okay, this is constant. This turns out to be constant. How? ठीक है, मैं बता देता हूँ. I wanted you to work it out, but it's okay. You know, h is 2t cos theta by r rho g. मैंने बोला कि लिक्विड सेम है, मतलब सरफेस टेंशन सेम है, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम है, रो सेम है, जी सेम है, तो h इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r. सो h इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r, मतलब h इक्वल टू सब कांस्टेंट बाय r, मतलब r h इक्वल टू कांस्टेंट. और आ गया जो मैं बोल रहा था वो, तो r इज कांस्टेंट, मतलब r1 h1 इक्वल टू r2 h2, राइट. वी वांट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ कोर्स, तो मैं डायरेक्टली एरिया से रिलेट करना ज्यादा इजी समझता हूँ. सो विल डू इन टर्म्स ऑफ एरिया बेसिकली. तो देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग. एक तो ये, चलो मैं दोनों मेथड बता ही देता हूँ आपको. सो आई टेल यू बोथ मेथड. तो यहाँ से हमको मिल गया r1 by r2 इक्वल टू h2 by h1, है ना. r1 by r2 is h2 by h1. So now you have a1 equal to pi r1 square and a2 equal to pi r2 square. तो r जब आप रेशो लोगे तो a2 by a1 आपको मिलेगा r2 by r1 का स्क्वायर, मतलब r2 by r1 मिलेगा अंडर रूट ऑफ a2 by a1, राइट. गुड. तो हमको मिल गया h2 by h1 which was r1 by r2 which is equal to under root of a1 by a2. तो h2 by h1 is under root of a1 by a2. a1 is a2 is a by 9. a cancel under root of 9, मतलब h2 is 3 times of h1, so 3 times of h, option number B. Okay, this is method 1. So method 2 भी है, easy है method 2. As I told you, h is proportional to 1 by r, but r is proportional to under root of a. कैसे? a is pi r square, but a is pi r square, मतलब a is proportional to r square, मतलब r is proportional to root of a. Therefore h is proportional to 1 by root a. Therefore h2 by h1 is under root of a1 by a2. ये आपका a अपॉन a by 9 है, तो अंडर रूट ऑफ 9 है, तो 3 आ गया. तो h2 is equal to 3 times of h1. ये आ गया आपका आंसर, right? Good. So this is how you can solve this particular question. Okay, so shortcuts भी है. It's up to you how you can think of the questions. Next question. When one end of a capillary is dipped in water, the height of water column is h. The upward force is 1059 due to surface tension is balanced by the force due to weight of the water column. The inner circumference is. Easy है question. तो I'll just show diagrammatically first, क्योंकि आपको ये चीज याद होनी चाहिए. देखो, if you remember, of course, if you remember, हमने जब यहाँ पे एक लिक्विड लिया था, तो हमने ये बोला था कि जो सरफेस टेंशन होता है इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट. ये सरफेस टेंशन है और उसका रिएक्शन था यहाँ पे भी सेम था, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो इन दिस केस हमने इसको टेंशन माना था T. ये भी टेंशन है T, क्योंकि एक्शन रिएक्शन से आता है. एक्चुअली टेंशन इज ओवर हियर, लेकिन उसका रिएक्शन है ऊपर,
तो ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल भी थीटा आ गया, राइट। तो नाउ इसके कंपोनेंट्स किए थे हमने, राइट। और इफ यू रिमेंबर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है दे कैंसल आउट, तो ओनली कंपोनेंट्स दैट रिमेन इज वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो t sin थीटा ये कंपोनेंट जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं, t sin थीटा कैंसल्स आउट, t cos थीटा बचता था। तो t cos थीटा ये पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पे एक्ट होता है। मैंने ग्राफिकली भी बताया था दैट दिस t cos थीटा कंपोनेंट्स दे आर एवरीवेयर ऑन द सरकमफ्रेंस, हर जगह पे है सरकमफ्रेंस पे। तो टोटल आ जाता है 2 पाई r t cos थीटा, दिस इज टोटल अपवर्ड फोर्स। तो ये अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेविटी है mg। मैंने बताया था कि अपवर्ड फोर्स, क्योंकि द आइडिया वाज कि ओरिजिनली लिक्विड का जो हाइट है वो ऐसा था, कैपिलरी इंसर्ट करने के बाद लिक्विड कॉलम का हाइट जो है वो बढ़ गया था, और सिंस दिस लिक्विड कॉलम का हाइट वाज इंक्रीज्ड, तो क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन समथिंग बैलेंस अगेन ग्रेविटी। इसका मतलब वहां पे अपवर्ड फोर्स होगा ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस होंगे। तो यू कैन राइट डाउन 2 पाई आर टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, राइट। तो द थिंग इज फॉर वाटर, प्योर वाटर थीटा जीरो आता है, फॉर प्योर वाटर थीटा जीरो आता है, तो कॉस जीरो वन आता है, ओके। तो 2 पाई आर, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो बनता है प्योर वाटर के लिए, 2 पाई आर टी इक्वल टू एम जी। हमें आर फाइंड करना है, तो आर क्या है, एम जी अपॉन 2 पाई टी, ओके। नाउ आपको टोटल अपवर्ड फोर्स ही दे दिया उन्होंने, है ना, द अपवर्ड फोर्स इज 105 डाइन्स, विच मीन्स कि दे हैव गिवन यू अपवर्ड फोर्स, तो हमको ये डाउनवर्ड फोर्स की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। So I just have to do up to this particular scenario, यहाँ तक ही सॉल्व करना है। तो अपवर्ड फोर्स हमारे पास है 2 पाई आर टी, सिंस cos थीटा इज cos जीरो, तो यहाँ पे आपके पास आएगा अपवर्ड फोर्स जस्ट 2 पाई आर टी, और अपवर्ड फोर्स की वैल्यू दी है 105 डाइन, ओके। तो 2 पाई आर सरफेस टेंशन, तो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट मैं ऐसा कर लूंगा, मैं r को लिख लूंगा अपवर्ड फोर्स अपॉन 2 पाई टी। तो अपवर्ड फोर्स इज 105 डाइन्स अपॉन 2 पाई इनटू सरफेस टेंशन इज 7 इनटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। लेकिन न्यूटन पर मीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यू कैन डू वन थिंग, या तो फिर डाइन को कन्वर्ट कर लो न्यूटन में 10 पावर माइनस 5 से, या फिर न्यूटन पर मीटर को डाइन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, वन ऑफ द टू थिंग्स यू हैव टू डू। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो 105 अपॉन 14 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3, है ना। you have to solve this. So after you solve this turns out to be you have been asked inner circumference, तो हमारा काम तो और भी इजी है। फिर उन्होंने इनर सर्कमफरेंस पूछा है, मतलब रेडियस नहीं पूछा, तो हमारा काम तो और भी इजी हो गया। वेरी गुड। तो दे आर आस्किंग अस व्हाट इज 2 पाई, हो गया सॉल्व, खत्म। देन इट इज वेरी सिंपल, नो कैलकुलेशन, नथिंग नथिंग। 105 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन अपॉन, ये जो था ये डाइन में था आपका, तो न्यूटन में कर लिया, अपॉन टी इज 7 इंटू 10 पावर minus 2. This is easy. This is of course very easy. Ones are, and of course you should know this is 15s are. So 15 into 10 power minus 3. तो 1.5 into 10 power minus 2 मीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर में आएगा ये। This is in सेंटीमीटर 1.5। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ ये बताना चाहिए कि अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज 2 पाई आर टी cos थीटा इक्वल टू अपवर्ड फोर्स है। cos थीटा लिखना जरूरी है, वाटर के केस में थीटा की वैल्यू जीरो होती है, ये पता होना चाहिए। तो अपवर्ड फोर्स इज 2 पाई आर टी, तो 2 पाई आर इट इज इनर सर्कमफरेंस व्हिच इज अपवर्ड फोर्स अपॉन टेंशन। तो सॉल्व करते जाओ, कन्वर्ट कर लो, एंड देन यू आर डन। ऑलराइट, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे and we'll take more questions in the next session.